Namaste, Namaskar, and very good afternoon to all of you. Hope I am clearly audible and visible to everyone sitting there. Welcome to the fourth episode of Quizdom, that is season 2, fourth episode of Quizdom. अगर overall आप देखते हैं तो this is the 26th episode we are in. Okay, and today again we are with 35 questions of the events which happened in last 1 week. 1 week बोले तो till 4th of February. Okay, तो 28 से 4th of February के बीच की जो घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स इवेंट्स होती हैं, उस बेस पर वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज टुडे. Okay, so first thing first, am I clearly audible to every one of you? Audible, visible, there is no issue. Yes, hello, good afternoon to everyone. Chaliye, very good. So we start with today's quiz, but first of all, I need to tell you the which book we are going to give as reward as prize for the to the winner of the quiz, right? This book is The Power of Positive Thinking. है ना. अब देखिए ये किताब जो है ये कई लोगों ने अपने शायद पढ़ी हो. दिस इज अ वेरी फेमस बुक, बट दिस वाज समथिंग व्हिच आई हैव नॉट गिवन टिल डेट इन सो मेनी क्विजेस इन लास्ट 20 एपिसोड. हमने ये बुक नहीं दी थी, तो दैट इज व्हाई इट वाज लाइक अ रिचुअल इन अ वे ना, कि ये बुक तो इंपॉर्टेंट वन शुड हैव बीन गिवन. सो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पेल, इनके द्वारा लिखी गई किताब है. दिस इज द रिवॉर्ड फॉर दिस वीक्स क्विज, राइट? सो to get this book, you need to answer 35 questions. 35 straightforward, simple questions of the events in last 1 week. At the end of the quiz, I'll be taking the name details of the winner and I'll be sending it to you. Hopefully, the other winners till date, the last 3 weeks, you must have received the book. The winners of the last three quizzes that they have, they can confirm that the book have been sent across to them. This book is The Power of Positive Thinking. The Power of Positive Thinking is the name of the book. Okay, and this will be the reward of this quiz. Okay, chaliye, chalo. All the best to every one of you sitting there. Only 35 questions are there. 35 questions will be asked in 4 phases. मान के चलिए. First phase, first part 10 questions, then leaderboard, then again 10 questions. After 20 questions, leaderboard, 30 question leaderboard, and at the end of 35 questions, Vedant, I've sent it. I'll check it again because I have sent it last week ही भेजी आ चुकी है. So don't worry, it will be reaching you shortly. Don't worry, है ना? Contact number है ना आपके पास में? उस पर एक बार बता दीजिएगा. Mostly it will be reaching you shortly. It has been sent from our end. Okay? चलिए. I'll tell you beta details I'm giving. So this is going to be 35 questions. It will be conducted on Menti. Menti.com पर आपको जाना है. वहां पर आपको ये कोड सामने जो दिख रहा है, दिस कोड इज 86820591, है ना. इस कोड को आप वहां अंकित करते हैं, देन यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द क्विज. चलिए, वेरी गुड, जो भी आप कहें. सो दिस इज गोइंग टू बी मेंटी क्विज. ये कोड आप डाल दीजिए, देन उसके बाद में या तो क्यूआर कोड के थ्रू भी यू कैन गो टू मेंटी.com, है ना. अब आपके पास दो डिवाइस हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट ऑन वन डिवाइस यू शुड हैव. तो देन मेंटी पर ये जो आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फॉर एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू गिव यू 35 सेकंड्स टू आंसर. 35 सेकंड्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय है. इन टाइम टू कम विल मेक इट टू 10 सेकंड, डोंट वरी. बट फॉर दिस क्विज एटलीस्ट आपको 35 सेकंड्स आर बीइंग गिवन. फॉर 35 seconds, sorry, 15 seconds, not 35. 35 questions are there. 15 seconds will be given. And maybe in coming quiz, I'll make it to 10 seconds. So for every quiz, you'll be given 15 seconds. You need to answer. You need to quickly answer. You need to correctly answer. अगर आप आंसर देते हैं तो स्कोर अच्छा होगा. अगर आंसर जल्दी देते हैं, क्विकली देते हैं, राइट, तो आपका स्कोर और बेहतर होगा. बिकॉज यूल बी गेटिंग मोर पॉइंट्स फॉर द करेक्ट आंसर आंसर्ड क्विकली, राइट. तो आपको आंसर करना है और जितना जल्दी हो सकता है उतना आंसर करिए. सर्च करने बैठेंगे आंसर कर पाएंगे, बट वो जल्दी नहीं होगा, राइट. एनीवेज, so this is the way we are going to go for. If you're all ready for it, then you can confirm and I can start with the quiz. I believe I made myself very clear. We are going to have this quiz on Menti. I again request you not to answer on the comments. The comments में आंसर मत करिए. It's not going to help you. आपको आंसर जो करना है वो मेंटी पर जाके ही करना है. और 15 seconds you are going to get. And for last 1 week, मतलब from 28 to 4th of Feb तक के इवेंट्स के ताल्लुक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो it is going to be very easy. If you're reading newspaper well, you will be able to answer it. Okay, if you're ready, then we can start now. Should I?
चलिए, we are starting with today's quiz. This is going to be the first question before you, and I'm going to take some time for the explanation part that is required when you again revisit, when you again go through the questions, so that becomes useful to you. So I'm going to take some time for explaining question, then I'll come down to another question. Okay. So this is going to be the first question for you. This is a time where you key in your right name, your correct name. Don't go for any creative name. Right, आपका सही नाम अंकित करिए यहाँ पर. चलिए, should I start? This is the first question before you. Answer this. भारत में पहली बार एक नोबल हेलन बटरफ्लाई, so very rare butterfly that was spotted some time back in India. Which state we are talking about? चलिए, great. Kerala and Arunachal Pradesh got same, जिसको बोलना चाहिए response, but the correct answer in this case is अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पर सही आंसर है, समझ लीजिए. दिस इज द बटरफ्लाई. इट्स अ वेरी रेयर बटरफ्लाई. और ये कहाँ पर पहले इट वाज फाउंड इन, आप देखें तो इट वाज फाउंड इन म्यांमार, सदर्न चाइना एंड वियतनाम, इन इलाकों में पाई जाती थी, बट वाज नॉट सीन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश. वहां पर तीन लोकेशंस पर जो नामढापा जो नेशनल पार्क होता है, वहां पर तीन लोकेशन पे पाई गई है ना. तो इट्स नेम इज नोबल हेलन बटरफ्लाई. ये स्वेलोटेल एक कैटेगरी होती है, उसको बिलोंग करती है. तो इट्स अ रेयर बटरफ्लाई, रिसेंटली फाउंड इन, रिसेंटली मतलब ये टाइम दिया 1921 के बीच में, सितंबर 2019 और सितंबर 2021, 2 वर्ष के बीच में ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई. Right. So that is why it's a rare जिसको बोलना चाहिए event. Arunachal Pradesh should be the answer for this. Many of you, 17 of you have answered correctly. I'm coming down to second question. This is question number 2 for you. Answer this question now. Which country will no longer have British monarch on its $5 note? पहले तो डॉलर कहाँ यूज नहीं होता है, हटा दीजिए. चलिए, ऑस्ट्रेलिया has been is the correct answer. Most of you answered correctly, but यूके में डॉलर यूज ही नहीं होता है. यूके में इट्स पाउंड स्टर्लिंग, है ना. सो डॉलर तो यूके में होते नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में जो $5 नोट होता है, वहां पर अब किंग चार्ल्स जो है, उनका उसको बोलना चाहिए, उनका फिगर आना चाहिए, उनका इमेज वहां पर आनी चाहिए. बट ऑस्ट्रेलिया ने अभी उसको रिजेक्ट कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया टोल्ड कि वी आर गोइंग टू पुट समथिंग इंडिजिनस देयर, है ना. जो इंडिजिनस पॉपुलेशन जो होती है उनके ताल्लुक में, दे आर गोइंग टू पुट समथिंग ओवर देयर. दे आर नॉट गोइंग टू यूज द इमेज ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ किंग चार्ल्स देयर. तो दे आर इन अ वे गोइंग टू डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ मोनार्क. जो किंग चार्ल्स है उनका जो पिक वहाँ पिक होता है, जो इमेज होती है, उसे दे आर नॉट गोइंग टू पुट देयर. वहां जो सिक्के होंगे उसमें रखा जाएगा. फॉर कॉइन्स दे आर गोइंग टू कंटिन्यू, है ना. बट फॉर डॉलर नोट जो लास्ट था बेसिकली, उस पर $5 नोट पर अब जो मोनार्क होते हैं उनका पिक्चर वहां पर, उनकी इमेज जो है नहीं आने वाली है. तो दे आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू दिस, है ना. बिकॉज दिस वॉज द लास्ट वन. बेटा ये अंतिम था ना, अब इसके बाद में तो है ही नहीं. लास्ट मोनार्क अडॉन बैंक नोट इट वाज. तो इस पर अगर नहीं यूज करने वाले हैं, तो दैट विल अल्टीमेटली एंड दी प्रोसेस. अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द ट्रेडिशन इन अ वे, राइट. बट फॉर जो सिक्के होते हैं, सिक्के पर रहेगा. सिक्के पर जो जो उनका जो इमेज आती है, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू. फॉर नोट दे आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू, राइट. तो आंसर शुड बी ऑस्ट्रेलिया इन दिस केस. चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, बिल्कुल. आंसर दिस. लाडली बहना योजना has been launched by which of the following state? Great, very good.
देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में शायद कुछ समय पहले हम क्विज में हमने डिस्कस किया था। लाडली लक्ष्मी योजना बिलोंग्स टू इट, द स्कीम बिलोंग्स टू एमपी ओनली, है ना। और यहाँ पर भी जब हम लाडली बहना योजना की बात करते हैं तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू एमपी ओनली। यह भी एमपी से ही है। इस योजना को जो एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा कुछ समय पहले इसे लॉन्च किया गया है। तो अगेन लाडली बहना जो योजना है ना, यह भी मध्य प्रदेश को ही बिलोंग करती है। इट इज ऑल्सो फ्रॉम मध्य प्रदेश, जैसे कि पहले लाडली लक्ष्मी योजना होती थी, राइट। तो दैट वाज अनाउंस्ड बाय सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनाउंस किया गया था, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा। एंड ही अनाउंस इट इन नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद का नया नाम है, राइट। तो आंसर शुड बी ए, शुड हैव बीन द आंसर। मेनी ऑफ यू हैव करेक्टली आंसर्ड इट, है ना। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, वी आर कमिंग डाउन टू आंसर दिस। हाँ बेटा, यहाँ आंसर नहीं करना है हमें। I have told you at the beginning only. You need to answer on 90 only. 90 पर आंसर करिए। त्रिशक्ति प्रहार exercise was recently conducted in which of the following states? वेरी गुड। त्रिशक्ति प्रहार प्रहार जो एक्सरसाइज है ना, दैट वाज कंडक्टेड बिटवीन आर्मी, एयरफोर्स एंड जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं उनके बीच में कंडक्ट की गई थी। एंड दिस वाज कंडक्टेड इन बंगाल, नॉर्थ बंगाल में से कंडक्ट किया गया था फ्रॉम जनवरी 21 ऑनवर्ड्स। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन शुड हैव बीन द वेस्ट बंगाल। इट्स अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन वेरियस फोर्सेस, वेरियस आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। इनके बीच में ज्वाइंट इन एक्सरसाइज थी। तो कंडक्टेड इन नॉर्थ बंगाल, बंगाल में कंडक्ट की गई थी। त्रिशक्ति प्रहार वाज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, अगेन वेरी नॉट सिंपल, आई वुड से इफ यू रेड न्यूज़पेपर देन यू वुड बी एबल टू आंसर श्योरली। देखिए, अभी कुछ समय पहले देर इज ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन करवाया गया। तो उसके ताल्लुक में आपसे यहाँ क्वेश्चन ही पूछा गया था कि हमारे देश में जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है उसमें कितना इजाफा हुआ है एज कंपेयर टू 2019-20 से। अगर 2021-20 को 20-21 को कंपेयर किया जाए, जो जो अभी सर्वे आया है उसमें हाउ मच वाज द इंक्रीज इन द एनरोलमेंट, एनरोलमेंट में कितना बढ़ोतरी हुई थी, कितना इजाफा हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ, दैट वाज आस्क्ड। So hearing the survey says that 7.5% increase in student enrollment across the country as compared to the लास्ट सर्वे ईयर। मतलब 19-20 का लास्ट सर्वे था, 20-21 का नया सर्वे होता है। तो 20-21 के नए सर्वे में 7.5%, 7.5% का इजाफा हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट। ओके, तो आंसर शुड हैव बीन 7.5 बी। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 6। आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। So the following country went on to win Hockey World Cup this time around. It's a, again very easy one. हॉकी वर्ल्ड कप इस बार का किसके द्वारा जीता गया? हॉकी वर्ल्ड कप भारत में कराया गया था, राउरकेला भुवनेश्वर में कराया गया था, फाइनल भुवनेश्वर में हुआ था। तो फॉलोइंग कंट्री वेंट ऑन टू विन द हॉकी वर्ल्ड कप। यस, ग्रेट। देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप जो था दैट वाज वॉन बाय जर्मनी बीटिंग बेल्जियम। पहला ऑप्शन बेल्जियम दिया गया था। बेल्जियम वाज द, दे वर द रनर्स अप। तो Germany beat Belgium in the penalty shootout. Again, final went to penalty shootout, and they went on to win their थर्ड, जो उनका थर्ड टाइटल था जर्मनी द्वारा जीता गया। और जर्मनी के प्लेयर ही जो नॉर्मली इनमें देखा जाए तो निकलास वेलन जो है, ही वाज कन्फर्ड एज द प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल एज द बेस्ट प्लेयर एंड बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द टूर्नामेंट। और उसके अलावा जो गोलकीपर जो होते हैं वो, ही वाज फ्रॉम बेल्जियम, तो उपविजेता वो गोलकीपर रहे। बेस्ट गोलकीपर वाला उनको अवार्ड दिया गया। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जर्मनी के प्लेयर को ही दिया गया था। ओके, देन कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 7, दिस क्वेश्चन नंबर 7 बिफोर यू। आंसर दिस। चैट जीपीटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? अ वेरी, इसको बोलना चाहिए नोन चैट ऐप हैज बिकम सडनली, इट इज गोइंग प्लेसेस, इट इज गेटिंग, जो डाउनलोड हो रहा है, रिकॉर्ड डाउनलोड हो रहा है।
यस ग्रेट, ओपन एआई। देखिए ये जो बाकी नाम आपको यहाँ दिए गए हैं, दे आर बेसिकली इन्वेस्टर्स इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, है ना। वाईसी रिसर्च, अमेजन वेब सर्वर्स, इन्फोसिस, ओपन, अभी ओपन एआई में इन बाकी तीनों कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ। अल्टीमेटली द कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट इज ओपन एआई। उनके द्वारा चैट जीपीटी ऐप लॉन्च किया गया। इट्स लाइक अ, इट्स अ कन्वर्सिंग रोबोट, इट्स अ चैटिंग रोबोट जिसको बोलना चाहिए, एंड दैट टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स गोइंग ग्रेट। कई लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, रिकॉर्ड डाउनलोड इसके हो रहे हैं। एंड इनफैक्ट इट बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड है, बेसिकली इसको बोलना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड है। एंड नाउ गूगल एंड अदर कंपनीज दे हैव टू कम अप विद दिस, दे हैव टू कॉम्पीट अकॉर्डिंगली, दे आर कमिंग विद देयर ओन वर्जन। बार्ड जो है अभी गूगल के द्वारा लाया जाएगा अगेंस्ट चैट, this chat gpt। तो इट वाज लॉन्च बाय ओपन एआई, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 30th नवंबर को। हाँ ये दिया है यहाँ पर कि 30th नवंबर को इसको लॉन्च किया गया, एंड विद इन अ मंथ और 2 मंथ ओनली इट हैज बिकम sorry, it's become very popular। Okay, coming over to question number 8, answer this। Which seaport of Ukraine has been added to UNESCO's list of World Heritage Sites? यस बेटा, देखिए ओडेसा जो है, ओडेसा इज द सी पोर्ट इन यूक्रेन, एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ हेरिटेज साइट जो डिजर्व करने वाली जगह वो है। दूसरा उसमें एक कंसर्न ये है कि यह जो सी पोर्ट है, इट इज अंडर अंडर लॉट ऑफ, जिसको बोलना चाहिए, थ्रेट बाय रशिया, बिकॉज रशिया कैन एनी वे डिस्ट्रॉय दिस प्लेस। तो उसको बचाए रखने के लिए इट वाज रिकमेंडेड बाय यूक्रेन दैट इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज द हेरिटेज साइट। अगर हेरिटेज साइट उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो शायद रशिया रशिया से उसको बचाया जा सके। तो फॉर दैट रीजन दिस पर्टिकुलर पोर्ट जो होता है यूक्रेन का, यूक्रेन ब्लैक सी पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा, इसकी स्पेलिंग में परिवर्तन आता है, ओडीई ऐसे भी होती है, ओडीई ऐसे भी होती है, टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसको हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया तो थोड़ा सा ये रहेगा, बिकॉज रिकॉग्निशन हैज बीन गिवन एंड ही इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय द हेरिटेज साइट, तो दैट फॉर दैट कंसर्न बेसिकली टू सेफगार्ड इट, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को द्वारा, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। क्लियर? तो अब इसमें जो, मतलब जिसको वोटिंग होती है, बेसिकली वोटिंग के बेस पे इसको डिक्लेयर किया गया है, तो 6 वोटेड इन फेवर, 1 इन अगेंस्ट एंड 14 एब्सटेंशन के बाद इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, आंसर दिस क्वेश्चन। विल स्पीक ऑन दैट बेटा अर्चना एट द एंड ऑफ द क्विज। Beta Udit, you can find the number for, you can contact our support team and they'll be able to help you out. Archana will speak on that part later, how to prepare for a quiz. That will speak on that part. चलिए, who among the following was selected by ICC as the Emerging Player of the Year award? ICC के द्वारा Emerging Player of the Year का award किसको दिया गया? Unfortunately, only 10 of you could answer, but because others' names were as famous as that, too many of you answered Shefali Verma, who was captain of, sorry, Shefali Verma was the captain of under 19 team. Then Renuka Singh is a fast bowler. Dipti Sharma was that मैनकडिंग इनके द्वारा किया गया था। हरमनप्रीत कौर इज द कैप्टन ऑफ आवर सीनियर टीम। ये 4 ऑप्शन थे, इनमें से रेणुका सिंह द फास्ट बॉलर जो है, वो उनको शी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है ना। इंडियन टीम स्टार फास्ट बॉलर रेणुका सिंह हैज बीन सिलेक्टेड बाय आईसीसी एज द प्लेयर was conferred as the emerging player in terms of hockey। यहाँ पर इट इज रेणुका सिंह, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है तो शायद बोर्ड ऑफ द डे, राइट। तो यहाँ पर try to answer 10 immediately, but answer this। Which this scheme in the budget was announced to facilitate the plantation of which of the following?
चलिए ग्रेट, 34 ऑफ यू मींस मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। मैनग्रोव्स होते हैं, उनके उनको बचाने के लिए बेसिकली विस्टी स्कीम, द मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स was announced is a new program that declared in Union Budget 2022-23। और मैनग्रोव प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, मैनग्रोव जो होते हैं अपने अपने साथ में पूरा जो बायोडाइवर्सिटी होती है आसपास की उसे प्रिजर्व कर पाते हैं। एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी दे वर्क एज अ शील्ड, है ना, एज अ सेफ गार्ड वर्क करते हैं। मैनग्रोव्स आर इंपॉर्टेंट, उनको बचाने के लिए दिस मिस्ट्री स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड हियर। वी यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एंड दिस द लीडर बोर्ड ऑफ द डे। Yes, but offline coaching is very much there. Our number is very much provided. You can call us our numbers and we'll be able to help you out in this, Udit. चलिए, here we got our first leaderboard of the day। पहला leaderboard देखें तो सौम्या is leading with 8,307 points, followed by Tanishka, followed by I believe the name is not complete, followed by Swaha, followed by Ved, Aniruddha, Upasna, Mahi, Suryansh, Khushbu and Harsh are the 10 contenders at this point of time. Still, we are left with 25 questions, and these 25 questions are from, I told you, till 4th of Feb। इसको आप अभी भी you got lot of chance to be a winner। We are coming to question number 11 now। बेटा अभी this video and audio quality everything is clear to you? If you got any doubt, let me know first of all। Working well for you? चलिए very good। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 11 ना। क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर। टेब्लो मतलब जो झांकियां होती हैं, रिपब्लिक डे की झांकियां जो होती हैं, उसमें जो पहला पुरस्कार है, इस बार का पहला पुरस्कार जो है वो उत्तराखंड की झांकियों को दिया गया था। 17 झांकियां जो थी वो स्टेट से थी, उसमें उत्तराखंड की जो टेब्लो थी उसे फर्स्ट पुरस्कार दिया गया, फर्स्ट प्राइज वाज गिवन टू इट। राइट नाउ इट वाज आस्क्ड कि जो टेब्लो थी उसका उसका थीम क्या रखा गया, तो व्हाट वाज द थीम ऑफ इट। तो थीम जो उसका था, दैट थीम वाज मानस खंड, है ना, मानस खंड वाज द थीम ऑफ द टेब्लो, दैट वाज टाइटल ऑफ द टेब्लो एंड दैट वाज रिकमेंडेड बाय देयर सीएम, उनके सीएम द्वारा उसको रिकमेंड किया गया था। देन इट गॉट द फर्स्ट प्राइज। और अगर बाकी उसमें देखा जाए तो पंजाब रेजिमेंट जो आर्मी की होती है, उन्हें जो फोर्सेस होती हैं उनके जो तीनों फोर्स हमारी होती हैं उनमें बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड दिया गया था। अगर उसमें आपसे बेस्ट चॉइस मतलब जिसको होना चाहिए पब्लिक चॉइस के ताल्लुक में देखा जाए तो इट वाज गुजरात दैट वाज कंफर्म विद द प्राइज। राइट, तो हियर इन इट वाज the Uttarakhand tableau that was given the first prize with the title of Manas Khand। Okay, coming to question number 12। This question number 12 before you। Which of the following is not among the cities where unity malls can be opened by the state government? देखिए, when you go through बजट आपने देखा हो तो बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनिटी मॉल की बात की। यूनिटी मॉल का मतलब होता है कि दीज मॉल्स कैन बी ओपन्ड इन द कैपिटल, इन द फाइनेंशियल कैपिटल, या कि फिर जो मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर्स होते हैं वहां पर ये मॉल ओपन किए जा सकते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और क्यों किया सकते हैं? टू सेल दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो होते हैं जो क्राफ्ट्स होते हैं उनको सेल करने के लिए दिस मॉल्स की बात की गई, यूनिटी मॉल उनको कहा गया। और उसमें बोला गया है कि दीज मॉल्स कैन बी ओपन इन कैपिटल्स, आई टोल्ड यू द मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर्स पे ओपन कर सकते हैं, एंड फाइनेंशियल कैपिटल्स होती हैं वहां पर ओपन किया सकता है। राइट, बट उसमें एकेडमिक हब्स का नाम नहीं लिया गया था। दैट वाज आस्क्ड टू यू कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहां पर एकेडमिक हब्स शुड नॉट हैव बीन देयर, तो डी आपका यहाँ पर आंसर होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आंसर करिए इसे।
Poverty of political economy, how economics abandon the poor is written by which of the following writer या author, economist आप बोल सकते हैं. देखिए, एक इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, लॉर्ड मेघनाथ देसाई उन्हें कहा जाता है. लॉर्ड मेघनाथ देसाई हैज रिटन द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर, रिटन बाय लॉर्ड मेघनाथ देसाई, है ना. उनके द्वारा लिखी किताब है. ही बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं, यूके में रहते हैं. लॉर्ड मेघनाथ देसाई उनको कहा जाता है. तो ही हैज रिटन दिस बुक. कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 14, आंसर दिस. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान किसको दिया जाएगा, मतलब विच कैटेगरी ऐसा आप मान के चले जिन्हें दिया जाएगा. इट में बी टीचर्स, आर्टिसंस, एंटरप्रेन्योर्स या की सोशल वर्कर्स. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विल बी गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए, यस, वेरी गुड. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान जो है इट विल बी गिवन टू आर्टिसंस, जो क्राफ्टमैन होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, उनके लिए इन पुरस्कार की घोषणा की गई है. इट इज कॉल्ड पीएम विकल्प, है ना. ये स्कीम एक बेसिकली योजना है, उसके अंतर्गत जो है पुरस्कार दिए जाएंगे ना. स्कीम वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द एनुअल बजट ऑफ यूनियन 2000, ड्यूरिंग बजट ऑफ 2023 में इसके बारे में बात की गई. कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 15 हियर. आंसर दिस क्वेश्चन. सागर सम्राट विच वॉज न्यू सम टाइम बैक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, आप बोल सकते हैं किस फील्ड से ताल्लुक रखता है सागर सम्राट. इट्स अ प्रोजेक्ट मान के चलें. देखिए, इट इज रिलेटेड टू ऑयल, है ना. कैसे रिलेटेड टू ऑयल. सागर सम्राट जो है अपने आप में इट्स लाइक अ शिप, इट्स लाइक अ रिग जो बोलते हैं. इट वाज देयर और उसके थ्रू ड्रिलिंग की जाती है ना. और इट वाज लॉन्च्ड इयर्स बैक, 1973 में लॉन्च किया गया. अब इसको एक तरीके से रिनोवेट कर दिया गया है एंड दिस हैज बीन रिनोवेटेड रिसेंटली एंड वाज रीइंट्रोड्यूस. उसको ऐसा बोला जाता है कि इट वाज रीडेडिकेटेड, है ना. तो हमारे जो पेट्रोल मिनिस्टर हैं, जो हरदीप सिंह पुरी है, उनके द्वारा इसको रीडेडिकेट किया गया. इट बिलोंग्स टू ओएनजीसी और देश को समर्पित किया गया एज ए मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट. मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट की तरह इसको फिर से रीडेडिकेट कर दिया, डेडिकेट कर दिया, देश को दिया गया है. और इसके थ्रू विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड ऑयल प्रोडक्शन जो हमारा होगा उसको हम इसके थ्रू बढ़ा पाएंगे, राइट. तो इट इज ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड द आंसर शुड बी. एंड हियरिंग वी कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 60. गांधी सागर floating festival. Asia's first floating festival was organized in which of the following place, किस जगह ऑर्गेनाइज किया गया था. चलिए, वेरी गुड. देखिए, फ्लोटिंग फेस्टिवल का मतलब होता है जो वाटर एडवेंचर, जो इसको बोलना चाहिए वाटर स्पोर्ट जो होते हैं, उसके लिए पहली बार हमारे एशिया का पहला फ्लोटिंग एडवेंचर जो है, फेस्टिवल जो है, वो मंदसौर, मंदसौर जो है वो मध्य प्रदेश में होता है. मंदसौर में, मध्य प्रदेश में गांधी सागर फ्लोटिंग दिस फेस्टिवल वाज लॉन्च्ड ऑन फेब फर्स्ट को. ये 5 दिन का फ्लोटिंग फेस्टिवल, फर्स्ट एवर इन एशिया फ्लोटिंग फेस्टिवल दैट वाज लॉन्च्ड इन मंदसौर में से लॉन्च किया गया था. क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करिए. वेरी गुड. देखिए, माइक पॉम्पियो द्वारा एक ही किताब है, नेवर गिवन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव. ही वाज इन द टाइम ऑफ, अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात की जाए तो उनके समय में ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अर्लियर ही वाज सीआईए, जो हेड होते हैं वहां की एजेंसी जो होती है, उनके हेड रह चुके हैं. तो ही हैज रिटन द बुक दिस नेवर गिवन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव. और इसमें अगर आप थोड़ा देखें तो वह सारे लोग यूएस में जिन्हें प्रेसिडेंट बनने का, जिसको बोलना चाहिए,
शौक नहीं बोल सकते उसको, बट प्रेसिडेंट बनने की चाहत होती है, एम्बिशन होता है, दे नॉर्मली गो ऑन टू राइट बुक्स, या पीपल हु ऑलरेडी बिकम प्रेसिडेंट एंड अबाउट देयर एक्सपीरियंस दे कीप राइटिंग. तो दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस बेसिकली. अगर आप इंडिया टुडे पढ़ते हो तो उसकी न्यूज में बिगनिंग ही यहाँ से होती है कि लाइक children write essays the same way president या ambitious जो जिनको president बनने का होता है ambition, they write books. So in one of those cases Mike Pompeo, former Secretary of State of US, has written a book, Never Give an Inch, Fighting for America I Love. Coming over to question number 18 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, आंसर करिए से. डिफेंस के ताल्लुक में जो अमाउंट होता है उसमें बढ़ोतरी की गई है इन बजट. यू बी सिंपली आस्क हाउ मच परसेंटेज ऑफ अमाउंट द अलोकेशन जो होता है उसमें कितना परसेंट बढ़ाया गया है. हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज is there in this year's budget in defense. So it has been increased by 13%. 13% से increase हुआ है. The union budget allocated 5.94 lakh crore in defense. That is increase of 13%. जो year on year के ताल्लुक में देखा जाए तो it's increase of 13%. Coming on to question number 19. Operation Sadbhavna is related to which of the following states? The state was in news some time back. ऑपरेशन सद्भावना जो है वहां आर्मी द्वारा लॉन्च किया जाता है. इंडियन आर्मी हैड लॉन्च ऑपरेशन सद्भावना फॉर वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड पीपल्स इन्वॉल्वमेंट जो होता है उस ताल्लुक में ऑपरेशन सद्भावना वाज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी इन लद्दाख, है ना. As part of Operation Sadbhavna in the Union Territory, the activities are aimed at helping children living in the remote areas, and regarding education and welfare, this scheme was launched by Indian Army related to Ladakh. Should have been the answer. Coming to question number 20 before next leaderboard. चलिए आंसर करिए इसे. इंडियन कोस्ट गार्ड डे किस दिन मनाया जाता है? चलिए, फर्स्ट फैब जो होता है उसे मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे की जगह. इट इज तटरक्षक बल जो हम कहते हैं. इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट फैब एवरी ईयर, है ना. इट वाज 47th रेजिंग डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट फैब 2023. ओके. And after 20 question, this is your leaderboard. Hopefully you find your name in the leaderboard. चलिए, Tanishka is leading with 14,139 points, followed by Soumya with 13,827, followed by Khushbu with 11,986 points, followed by Swa, Ved, Shobhit, yes, great, Aniruddha, Samriddhi, Upasna, and Mahi. Yeah, great going. Very close score are there. Again repeat, 15 questions are still left. Can still do well, right? So I'm coming down to question number 21. You answer this. बेटा कोई बात नहीं, चलेगा. All the best. Which legal provision did the government of India invoke to direct Twitter and YouTube to disable the access to BBC's documentary in India? चलिए, आईटी रूल 2021 के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर और यूट्यूब पर जो लिंक होती है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की, उस पर्टिकुलर पोस्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक करा दिया था. एंड दिस डॉक्यूमेंट्री वाज रिलेटेड टू मिस्टर मोदी. तो उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री है, इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से उसको ब्लॉक करवा दिया गया. तो किस पर्टिकुलर आधार पर, किस पर्टिकुलर सॉरी लीगल प्रोविजन के बेस पर इसको ब्लॉक कराया गया? तो इट वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के बेस पर इन लिंक्स को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक करवाया था, है ना. और द रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए तो इट वाज बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री बनाया. बीबीसी इज एन हैबिट ऑफ गोइंग फॉर सच थिंग. तो उन्हें राइटली सो हमारे यहाँ पर
वहाँ जो लिंक होती है उसको हमारे यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करने से उसको बैन करवा दिया गया, उसको लिंक हटा दी गई बाय यूट्यूब एंड ट्विटर। तो इट वाज विच रूल वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इट वाज इंफॉर्मेशन रूल्स 2021 के अंतर्गत किया गया था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। Private TV channels have to compulsorily air programs of public service broadcasters for how many minutes a day? Okay, private channels have to, as per rules, private channels have to broadcast at least 30 minutes a day. 30 minutes per दिन, or it's not one time they have to go for it. In maybe different slots, they need to devote 30 minutes per day, है ना, ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स जिसको बोलना चाहिए, उनको जो जो कई सारे मैसेजेस होते हैं, वो जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो होता है, वेलफेयर स्कीम्स रिलेटेड भी हो सकता है, दैट दे हैव टू गो फॉर 30 मिनट्स अ डे। इट्स 30 मिनट्स आर is not one time, is again I repeat, between different slots they can devote, but all the private channels have to compulsorily air programs of public service broadcasters for 30 minutes a day, है ना, एक दिन में 30 मिनट का उनको ब्रॉडकास्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर इज hydrogen for attached project is related to which of the following? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जर्मनी ने लास्ट ईयर हाइड्रोजन ट्रेन्स लॉन्च की थी, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन्स लॉन्च की थी। देन चाइना वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट एशियन एंड सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड। Indian government, we herein we also we award this ambition to really to go for hydrogen fuel based trains. So Indian Railway is envisaging to run 35 hydrogen trains under Hydrogen for Heritage program. है ना, an estimated cost of 80 crore per train is going to be there। और ये जो ट्रेन होंगी वो 35, इसका टारगेट रखा है कि 35 ट्रेन जो होंगी हम इस तरीके से इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम के अंतर्गत रन कर पाएंगे। अगेन जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो दे हैड अराउंड 15 ट्रेन की फ्लीट उनके द्वारा कॉर्डिया आइलैंड करके लॉन्च की गई थी लास्ट ईयर, एंड चाइना ने इस बार लॉन्च किया है। इंडिया हैज गॉट द एम्बिशन टू बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 24 says Veer Guardian exercise was conducted between India and which of the following nation? देखिए एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको मालूम हो तो एक धर्मा गार्जन एक्सरसाइज होती है। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज जो होती है वो भारत और जापान के बीच ही की जाती है, दैट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना। और उसी तर्ज पर देखें तो नाउ वी हैव गॉन फॉर वीर गार्जन एक्सरसाइज। वीर गार्जन जो है इट इज एन एयर फोर्स एक्सरसाइज बेसिकली होती है किन्हीं भी देशों के बीच में। इट कैन बी मिलिट्री, दैट इज आर्मी एक्सरसाइज, इट कैन बी एयर फोर्स एक्सरसाइज, इट कैन बी नेवल एक्सरसाइज, इट कैन बी जॉइंट एक्सरसाइजेस, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ जापान वी टॉक अबाउट, तो वी हैड दिस धर्मा गार्जियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, नाउ इट्स वीर गार्जियन एक्सरसाइज जो मेडन वर्जन अगर बोला जाए उसकी बिगिनिंग इस वर्ष से की गई है। एंड दिस ईयर इट वाज कंडक्टेड इन जापान, जापान में इसे कंडक्ट किया गया था। एंड अवनी चतुर्वेदी India's first fighter pilot, she went on to become the first fighter pilot to to participate in the combat exercise abroad, है ना। So that is also one thing you must remember, and this is the first exercise, वीर गार्जन एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज की गई है, and it was done in Japan with Japan by Indian Air Force। Coming to question number 25, the following is new name of Mughal garden at Rashtrapati Bhavan, and this is one of the most easiest question asked today, and I believe everyone should be able to answer it। Yes, great।
देखिए मुगल गार्डन जो मुगल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बेसिकली वहाँ कई तरह के रोजेस जो होते हैं वहाँ लगाए जाते हैं, उसे स्पेसिफिक टाइम के लिए खोला जाता है। उसका नाम परिवर्तित करके अब अमृत जो हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, उस ताल्लुक में नाम परिवर्तित करके अब अमृत गार्डन कर दिया गया है। तो नाउ ऑनवर्ड्स मुगल गार्डन जो है वो अमृत गार्डन के नाम पर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आते हैं। इस बार जो पद्म पुरस्कार की घोषणा जब की गई थी, तो देर वर 6 पद्म विभूषण दिए गए थे। क्लियर? उसमें 3 वर गिवन पॉस्टुमसली, 3 जो है वो मरणोपरांत दिए गए थे। बालकृष्ण दोषी जो एक आर्किटेक्ट थे, उनको दिया गया था। देन डॉक्टर दिलीप मालनबीस को दिया गया, और मुलायम सिंह यादव जो सीएम रह चुके हैं यूपी के, उनको दिया गया। ये मरणोपरांत दिए गए। ये क्लियर? इनकी मृत्यु जो थी डॉक्टर दिलीप महानबिस की 16 अक्टूबर को हुई थी। एंड डॉक्टर दिलीप महानबिस की बात की जाए, सो ही वाज द पायनियर इन द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ओआरएस, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जिसे ओआरएस कहा जाता है। उस ताल्लुक में ही इन अ वाइड स्प्रेड यूज जो बोला जाए तो उनके द्वारा किया गया था एट द टाइम ऑफ 1971, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको कहा जाता है। उसमें जब कई सारे शरणार्थी भारत आए थे, तो जो बीमारियां उस समय हुई थी, तो उन्हें ओआरएस का घोल उस समय दिया गया था, एंड वेंट ऑन टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। एंड लेटर ऑन इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड, एंड सो मेनी लाइव्स हैव बीन सेव्ड बाय इट, राइट? एंड दिस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलना चाहिए डिस्कवरी बोल रहे हैं उसको, जो यूसेज दिखा गया। बट आई डोंट नो व्हाई ही शुड हैव बीन कंफर्म विद द नोबेल प्राइज, बट देन ही वाज नॉट। एंड हमारे द्वारा अभी इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है, पॉस्टुमसली नवाजा गया है पद्म विभूषण, डॉक्टर दिलीप मालवीज, uh, uh, who started the widespread use of ORS. Clear? Coming to question number 27. So following has joined ISA recently. ISA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला सबसे रीसेंट कंट्री कौन सा है? देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला कॉन्गो has become the newest country to join the international solar alliance. It is most only it has become 123rd nation to join the international solar alliance. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट वाला जो कॉप 21 हुआ था, उसमें भारत और फ्रांस द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। पीएम मोदी एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट उस समय होते थे फ्रांस के, फ्रांको होलांदे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड नाउ इट इज मोर देन 100 कंट्रीज, दैट इज 123 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इट इज ओनली इंडिया बेस्ड ग्रुप, वेर इन दी हेडक्वार्टर जो इसका है वो हमारे गुरुगांव में इसका हेडक्वार्टर होता है। तो कॉन्गो इज द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन दी आईएसए रिसेंटली। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, so 28. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये आपके इवन क्लैट में पूछा गया क्वेश्चन। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फेब एवरी ईयर। 2 फेब जो होता है, 2 फेब 1971 को वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था रामसार, दैट इज इन ईरान, 1971। इंडिया ज्वाइन द कन्वेंशन इन 1983। एंड दिस पर्टिकुलर रामसार साइट जो जो बोली जाती है, वेटलैंड साइट जो कन्वेंशन दिया जाता है, दैट इज देयर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड साइट, आर्द्र भूमि जिसको हिंदी में कहा जाता है। These wetland sites are of great importance in terms of biodiversity, in terms of carbon absorption, and they are really very important. तो उनके द्वारा वेटलैंड कन्वेंशन जो हुआ था वो 2 फेब को हुआ था। 2 फेब, दैट इज वाई सेलिब्रेटेड इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन क्लैट। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर
29. Al Minhad district and its surrounding areas have been renamed as the Hind city in which of the following country? कि अभी कुछ समय पहले जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है यूएई के, दैट इज शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उनके द्वारा वहाँ की जो अल मिन्हाद डिस्ट्रिक्ट होती है उसका नाम परिवर्तित करके हिंद सिटी कर दिया गया है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये किया गया है। द नेम ऑफ द सिटी हैज बीन चेंज टू हिंद सिटी, एंड वहाँ पर 4 जोन होते हैं, हिंद वन, हिंद टू, हिंद थ्री एंड हिंद फोर आर द 4 जोन जो वहाँ पर बनाए गए हैं। तो अगर कंट्री अगर पूछा जाता है तो इट शुड बी यूएई इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, the following has been announced as the new capital of Andhra Pradesh some time back. Great. देखिए आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी जो हैं उनके द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद 3 कैपिटल प्लान। हम 3 कैपिटल प्लान जो है वो पहले जो बोला गया था, वी आर गोइंग टू स्टिक टू इट, एंड आंध्र प्रदेश गोइंग टू बी न्यू कैपिटल। और वो 3 कैपिटल प्लान की बात की जाए तो वहां पर आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल जो है वो, सॉरी, विशाखापट्टनम इज गोइंग टू बी द न्यू कैपिटल, वाइजेक जिसे कहा जाता है। एंड वाइजेक विशाखापट्टनम जो होगी दैट इज देयर, इट इज गोइंग टू बी देयर एग्जीक्यूटिव कैपिटल, फॉलोड बाय अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, एंड कर्नूल जो होगी वो जुडिशियल कैपिटल कहलाएगी। तो दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद देयर प्लान ऑफ 3 कैपिटल, wherein Vizag, Visakhapatnam is going to be their executive capital. So this was announced by their CM some time back. Coming over to our leaderboard now. After 30 questions, this is the leaderboard before you. Soumya is again leading with 21,000 points and closely followed by Tanishka with 19,950, almost 20,000 points, followed by Shobhit, Samriddhi, Khushbu, Swa, Ved, Harshit, Upasna, and Ud. Okay. So now the competition is very close, but still we are left with 5 questions. What you need to do, you need to answer all these 5 questions. You need to answer all these 5 questions correctly, and you need to answer as quickly as possible so that you can get a decent jump and you can become a winner in this. So coming over to question number 31 on this last 5 questions. All the best to all of you. Try to answer as early as possible, as quickly as possible. बिल्कुल सब आ सकते हैं फर्स्ट। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31। Haifa port of Israel was recently acquired by which of the following business group? अदानी के द्वारा, अदानी ग्रुप द्वारा हाइफा पोर्ट जो होता है 1.2 बिलियन डॉलर में अक्वायर किया जा रहा है ना। दे आर इन न्यूज फॉर ऑल द रीजंस, इनफैक्ट दे आर द ओनली वन हु आर इन न्यूज, बट हियर इन वन पॉजिटिव न्यूज रिलेटेड टू अदानी ग्रुप की बात की जाए तो उनके द्वारा हाइफा पोर्ट जो होता है इसराइल का, वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में जो वहाँ के अभी पीएम बने हैं उनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, एंड दे आर गोइंग टू बाय दैट हाइफा पोर्ट इन Israel. Okay, coming to question number 32 now, the fourth last question. वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब मनाया गया? अब ये स्पेसिफिक डे नहीं होता है, ये इस बार किस दिन मनाया गया ये आपसे पूछा गया है। Many of you answered 31st जनवरी। देखिए 30th जनवरी आई डेंट गिव, मैंने वहां पर 30th जनवरी ऑप्शन दिया ही नहीं था स्पेसिफिकली। इट वाज 29 जनवरी, 31st जनवरी, 28th, 27th एंड 1st फेब, राइट। जो लेप्रेसी डे होता है, वर्ल्ड लेप्रेसी डे होता है, वो हर जनवरी महीने के लास्ट संडे मनाया जाता है। तो लास्ट संडे जो था इस बार इट वाज 29 जनवरी।
तो 29 जन वॉज ऑब्जर्व एज दी वर्ल्ड लेप्रेसी डे। ये हर वर्ष संडे, लास्ट संडे ऑफ जैन को ही मनाया जाता है। दिस टाइम इट वाज 29 जैन। बट देन अगेन यू नीड टू बी वेरी क्लियर, ये सेम स्पेसिफिक डेट नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट संडे तो इस बार 29 था, हो सकता है 30 31 जब भी हो। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्पेसिफिकली ये पूछ सकते हैं कब होता है, तो लास्ट संडे ऑफ द जैन, या कि स्पेसिफिक फॉर 23 पूछा जाए तो दिस शुड बी योर क्लियर आंसर। एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी वाज द थीम फॉर दिस ईयर। इस साल की थीम होती है एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। राइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, है ना, वेयर दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इन विच स्टेट इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। यस, ग्रेट। पांचवें खेलो इंडिया गेम जो है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कई सारे जो हमारे जिले होते हैं वहाँ इन्हें ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट इज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इन सभी जगह पर अलग अलग जो इवेंट्स होती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो दिस फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन एमपी ओनली, है ना, एमपी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 23 होना चाहिए, सॉरी, 23 जो होगा, तो इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन एमपी ओनली। MP should be the correct answer. Coming over to question number 34, second last question of the day. Answer this question. Center of Excellence for Millet will be established in which of the following place? The Center of Excellence for Millet will be established in which of the following place? That was the question asked to you. देखिए, मिलेट जो होते हैं, मिलेट मतलब दिस ईयर अगर देखें, पहले तो सबसे पहले दिस ईयर 2023 जो बात की है, भारत द्वारा रिकमेंडेशन पर द ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की तरह मनाया जा रहा है। मिलेट जो होते हैं दे आर अदर देन ग्रेन्स एंड राइस। जो अब देखें तो ज्वार बाजरा जो होता है उन्हें मिलेट कहा जाता है, या सीरियल जो बोलना चाहिए ग्रेन्स में शुमार होते हैं। राइट, एंड उनका जो एक सेंटर, जो बेसिकली अगर आप हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में दिस वन इंस्टीट्यूट इज देयर, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ Indian Institute of Millet Research, and this is going to be converted to Center of Excellence for millets। है ना, मिलेट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसे बनाया जा रहा है। मिलेट्स का एक दूसरा नाम होता है श्री अन्न। Millet is also known as Shri Anna, and this was discussed during Union Budget में बताया गया था कि India was the largest producer of second largest exporter of Shri Anna, that is millet, India has become, है ना। So millet का center of excellence is going to be made at Hyderabad, should be remembered। We are coming to question number 35, sorry 35th question पर हम आ रहे हैं। This is the question number 35, the last question for you, try to answer this question। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ 1000 मॉन्यूमेंट्स। सभी को बराबर सम्मान दिया गया है करीब करीब। द क्वेश्चन वाज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्राइवेट कंपनीज will partner in with ASI for the maintenance of 1000 monuments। प्राइवेट कंपनी मतलब जो CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्राइवेट कंपनीज को कुछ धन खर्च करना होता है, उस ताल्लुक में देर इज अ स्कीम कॉल्ड स्मारक मित्र स्कीम। अब ये प्राइवेट कंपनीज अराउंड 1000 मॉन्यूमेंट जो हमारे देश भर में होते हैं उनको अब ये जो CSR वाला जो धन होता है, जो अमाउंट होता है, वो दिया जाएगा। मतलब प्राइवेट कंपनीज विल बी गिविंग इट टू ASI, मतलब विद ASI दे आर गोइंग टू मैनेज, दे आर गोइंग टू मेंटेन दी 1000 मॉन्यूमेंट्स इन आवर कंट्री थ्रू स्मारक मित्र जो स्कीम होगी उसके थ्रू किया जाएगा, अंडर अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट जो होता है उसके थ्रू। एंड दिस प्रोजेक्ट और दिस स्कीम जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इट वाज अर्लियर वाज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, है ना। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिस
Smarak Mitra scheme has been launched, wherein companies are going to maintain, matlab, they are going to pay for the maintenance of 1,000 different monuments in our country. है ना? So that was the question number 35. Many of you answered correctly. Now we come down to the leaderboard of the day, and we'll see who is going to be the winner of the day. Hopefully, you find your name there. Hopefully, you end up being a winner there. है ना? All the best to you, and this is the leaderboard of the day today. Finally, Soumya went on to win the quiz with 24,070 points. But many congrats to you, Soumya. All the best. And so proud of you. It was a tough fight because many of you started with as the winner in the first phase, and then it was a tough fight, but great. Many congrats. With 24,000 points, Soumya is going to winner. Soumya, I'm going to give you the number. You need to send the details on this number. इस number पे आपको detail भेजनी है. And Soumya was followed by Tanishka, Samriddhi, Shobhit, Swa, Khushbu, Vaid, Rohitash, Upasna, and Aruddha. Anuruddha, beta, great job done. I mean, I appreciate you're still in top 10, though that is no less than winning. But then hopefully, when you keep, participating in the quiz, in time to come, you are going to be there. And it's even Soumya, when you talk about the, she must have started some time back, and now ultimately she's able to win. So that is the way we need to go for. That is the way we need to fight, and then ultimately you are going to win. Now, there's so many quizzes every week we are going to get anyway. So many congrats to all of you. Many congrats to all those who participated in the quiz. So yes, there are always a next time, है ना? This time around, the book The Power of Positive Thinking is going to be given to Soumya. Soumya, I am putting the number over here. You need to send your name, you need to send your contact number and address, and we'll be sending this book to you. Just give me a minute. चलिए. To others who are asking about how to prepare for the quiz, I already told you last time also, I told the same thing. When you keep reading a newspaper, when you keep making notes from the newspaper, at least when I talk about notes, that means the factual information related to every event which is going around, जो अब घटनाएं हो रही हैं, जो अब न्यूज़ पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली दोज इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो बार बार देखते हैं, जो मतलब जो अनअवॉइडेबल है, उनका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप नोट करते हैं, तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन दिस एंड ट्राई आंसरिंग as many questions as possible. Try being part of the quiz again and again. Any which way, in some time with practice, you will be able to win this. You will be able to do well in this. ओके तो जो मेरा सुझाव है आपसे, आप अखबार पढ़िए, अखबार से आप नोट्स बनाइए और रेगुलर अखबार पढ़िए, मेड विद द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, विच एवर यू फील लाइक, जो बड़े बेहतर अखबार होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, उनसे ही क्वेश्चंस नॉर्मली हर वीक लिए जाते हैं. मनु सर का एक लेक्चर होता है एली के अपने यूट्यूब चैनल पर, वो प्रत्येक दिन वो लेक्चर होता है. यू नीड टू गो थ्रू दैट लेक्चर एवरी डे. मेक अ प्रॉपर हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू दैट लेक्चर. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू. इट इज गोइंग टू नो, उससे आप नोट बनाते हैं, उसमें से भी आप लिखते हैं, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, है ना? दैट इज द वे यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट. Thank you very much to all of you for being part of the quiz. We are again going to meet next week. We are going to be here next week at 2 o'clock. So for that time, thank you very much. Bye for now. Thanks a lot.